اور بیگم عرفان آپ دونوں کو خدا خوش رکھے اور ایک خوبصورت زندگی، ایک خوبصورت مستقبل آپ کا استقبال کرے۔ ٹوکن کے بغیر پینٹس بنانے والے ادارے ماسٹر پینٹس نے اس میں واشنگ مشین ہے، وہ آپ کو سلامی کے طور پر بھیجی ہے۔ پروگرام ختم ہو تو اب یہ آپ کی امانت ہے۔ خدا آپ دونوں کو خوش رکھے۔ آپ سب کو بھی میری طرف سے دعائیں ہیں، لیکن یہ جوڑا زیادہ حقدار تھا، ذرا دیکھو تو ویسے انہیں اینی کو عمر شادی ہو گئی۔ چلیے بسم اللہ، دلہن کے لیے پھول لائیں جی۔ ان کو دیں اور آپ پیش کریں، یہاں سامنے آئیں۔ کیسے پیش کرتے ہیں فلموں میں، ذرا ایک گھٹنا ٹیک کے یوں، ہاں جی، شاباش شاباش شاباش، ایک گھٹنا ٹیک کے یہ دیکھنا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، خدا آپ کو بھی خوش رکھے، آپ کو بھی خوش رکھے۔ دوستوں نے بھرپور تالیوں سے آپ کا استقبال کیا ہے۔ اب یہ آپ کی امانت ہے، پروگرام ختم ہو تو لے کے جائیے گا۔ بسم اللہ جی۔ خواتین و حضرات، کچھ وقت خطوں کے جواب کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ آج ہمیں خطوں کے جواب کے لیے تعاون حاصل ہے شمع کوکنگ آئل کا۔ شمع کوکنگ آئل بنانے والے اپنا پیغام دیتے ہیں۔ جو صحت اور لذت سے بھرا کھانا کھاتے ہیں وہ زندگی کا مزہ لیتے ہیں۔ شمع بنسپتی 4 نسلوں سے آپ کے ساتھ۔ جی، شمع کوکنگ آئل کی مہمان ہیں نمرا، اور جواب دینے کے لیے برائٹ فیس وائٹننگ کریم کا نمائندہ میں کھڑا ہوں۔ برائٹ فیس وائٹننگ کریم اپنا پیغام دیتے ہیں۔ اب میرا فیوچر ہے برائٹ۔ برائٹ فیس وائٹننگ کریم، یہ جادو نہیں۔ جی نمرا، کیا خط ہے آپ کے پاس؟ یہ خط کراچی سے آیا ہے۔ جی۔ لکھنے والی ہیں عفت جہاں، لکھتی ہیں محترم طارق عزیز صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے گرد و پیش جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ جی قانون نام کی کوئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہو تو اس کا پتہ ہمیں بھی بتائیے گا۔ میں تو قانون کو ڈھونڈ کر تھک گئی ہوں۔ کیا اقبالی اور قائد اعظم نے ایسے ہی ملک کا خواب دیکھا تھا؟ اور یہ یہاں ذرا رک جائیں کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا وہ یقیناً یہ پاکستان اس معیار پر نہیں پہنچ سکا ابھی تک۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں تعلیم کے میدان میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی سعی کرنی چاہیے، پھر جا کے کہیں ہم علامہ اور قائد کے نظریہ پاکستان تک پہنچ سکتے ہیں، ورنہ یہ تو ایک سلسلہ ہے، چل رہا ہے۔ جی۔ اور آج کل آپ قومی اسمبلی میں جوڈو کراٹے کے میچ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو لیڈران ہوتے ہیں یہ تو معاشرے کا جوہر ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں جب یہ اسمبلیوں میں اس طرح آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں تو ان کے کارکن انہیں دیکھ کر ایک دوسرے کا خون بہانا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا رک جائیں، یہ جو اسمبلی میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ شور مچ رہا ہے، ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں، کبھی کبھی کچھ اس سے بات آگے بھی بڑھ جاتی ہے، یہ دنیا کے اکثر ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے، اور یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ حالانکہ بات آپ اگر موقع سے سمجھانا چاہیں تو پھر اس کے لیے تو باکسنگ رنگ ہوتا ہے، قومی اسمبلی نہیں ہوتی۔ قومی اسمبلی میں تو دلیل، دعویٰ، دلیل اور لاجک، اس سے فلسفے سے بات کی جاتی ہے کہ اس کا یہ جواب ہے، اس کا یہ سوال ہے۔ جی۔ تو ہمارے اس پیارے پاکستان کا کیا بنے گا؟ پھر وہ لکھتی ہیں ان شہیدوں کی روحیں کتنی دکھی ہوتی ہوں گی اس طرح کے منظر دیکھ کر۔ ہائے ہائے ہائے،
ये अभी कल की बात है, वो क्यारी में, सियाचन में, इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता उस सर्दी का कि अगर इतनी सी उंगली भी उस लिबास से बाहर रह जाए तो वो फ्रोजन जो बाइट होता है वो हो जाता है, उसको काटना पड़ता है। मैंने अपने प्रोग्राम में मैं ऐसे दोस्तों को लाया हूं जिनके बाजू कटे हुए दोनों सर्दी की वजह से। उनका दुश्मन वहां हिंदुस्तान नहीं है, मौसम सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तो हिंदुस्तान की जिद है, लेकिन बहरहाल वो 124 या पता नहीं 140 बंदे वतन अजीज पर शहीद हुए और हम उन्हें मुर्दा नहीं कहते। हमारी किताब कहती है कि शहीद जो शहीद हो जाए वो वतन की हिफाजत करते हुए उन्होंने जान दे दी, और जो शहीद हो जाए उसे मुर्दा न कहो, वो जिंदा है, उसको अपने रब से रिज्क मिलता है, मगर हां तुम्हें उसका शऊर नहीं है। इसलिए जिसके घर शहादत की खबर पहुंचती है उसकी एक आंख हंसती है, एक आंख रोती है। इंसान तो होता है ना, कोई माँ होती है, कोई बाप होता है, कोई बेटा होता है, कोई बीवी होती है, कोई बहन होती है, इंसान है। जिगर तो चटकता है, लेकिन हौसला देता है आके हाथ कि वो शहीद हुआ है, और शहीद का बड़ा दर्जा है। जी, मैं एक लेक्चरार हूँ और एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ। कल रात मैं अपनी कार में वापस अपने घर आ रही थी। सड़क पर काफ़ी ट्रैफिक था और रुका हुआ था। इतने में 2 मोटरसाइकिल सवार पास आए। उनके पास पिस्तौल वगैरह भी थे। उन्होंने मेरा पर्स, फ़ोन, घड़ी और सोने की 2 चूड़ियाँ उतरवा ली। उन्होंने अपने मुंह छुपाए हुए थे। और तारिक साहब, यहाँ वो एक अजीब बात लिखती हैं, किस वक्त वो मेरा सारा सामान एक लिफाफे में डालकर वापस कर गए। साथ एक रुका था, आप हमारी उस्ताद हैं, हम अपनी मजबूरियाँ आपको नहीं बता सकते, माफ़ कर दीजिएगा, सारा सामान वापस कर रहे हैं, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। हाय हाय हाय, ये जो गुर्बत है ये इंसान को कुफ्र के दायरे के करीब तर ले जाती है। गुर्बत ऐसी बला चीज है। अब देखें कि ये बच्चे जो कॉलेज के तालिब इल्म हैं, डिग्रियां हाथ में लिए फिरते हैं, सिफारिश नहीं है, कोई नौकरी नहीं, रिश्वत नहीं है, कुछ नहीं, फिर रहे हैं। आखिर इंसान है, सांप के बच्चे तो हैं नहीं कि मट्टी खा के गुजारा कर लेंगे। इंसान का बच्चा है, भूख लगेगी, घर वाले मांगेंगे कि तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, तुझे पढ़ाया, जा जाके कमा कहीं से। सारा दिन वो ताने सुनता है। आखिर क्या होता है? कानून तोड़ता है। लेकिन ये दोनों जो मोटरसाइकिल सवार थे, इन्होंने अपने उस्ताद को पहचान लिया, क्यों, ये तो हमारे कॉलेज में पढ़ाती है। आधी रात को या जिस वक्त मैं नहीं जानता, लिफाफे में डाल के उसके घर उसका सामान दे आए और कहा कि हमें जो दुख हैं वो हम आपको नहीं बता सकते। गुर्बत बड़ी बुरी चीज है। मैं यकीन रखता हूं कि ये बड़े आदमी बनेंगे। जिंदगी ठोकरें तो मारती है, लेकिन यही चैलेंज बस औकात इंसान को एक उछाल देती है और सामने चांद नजर आता है, वहां तक जाती है। मेरा जी चाहता है कि पाकिस्तान का हर बच्चा इसी किरदार का मालिक बन जाए कि उस्ताद की इज्जत भी देखें। मैं यहां भूख तो खैर ठीक है, चोरी चकारी ठीक है, ये अजल से अबद तक। पिछले दिनों हमारा पाकिस्तान टेलीविजन का एक प्रोग्राम है, वसी शाह उसे करते हैं, उन्होंने मेहमान बना के बुलाया, मैं चला गया। अब बातें जाहिर है कि फन पर ही हो रही थी, तो मैंने कोई 25-26 फिल्मों में भी काम किया, अपनी भी 2 फिल्में बनाई, और वो अल्लाह के फजल करम से बहुत बुरी तरह नाकाम हुई। और मैं फिर फिल्म लाइन को छोड़ आया।
बात ये हो रही थी जहाँ से मुझे एक दो टेलीफोन भी आए। मैंने ये कहा था कि फन अदाकारी में, फिल्म में दो तरह के लोग बड़ा राज करते हैं। एक जो बहुत हसीन आदमी होता है और एक जो दरमियानी शक्ल सूरत का ज़रा थोड़ा सा और तरह का। मैंने मिसाल के तौर पर ज़ेबा का और रंगीले का तज़किरा किया था। अब रंगीले के साथ मैंने भी 4-5 फिल्में की हैं। अच्छा भला संजीदा सीन जा रहा है। मेरे एक सीन में वो मुझसे कुछ कहने आता है, मैं बड़ा संजीदगी से अपनी बात कर रहा हूँ, उसने टाई मुंह में पकड़ी, टाई को मुंह में खाता 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 यहाँ तक आ गया। अब मेरा तो सारा बेड़ा गर्क हो गया ना, क्योंकि मैं तो एक लाइन में रह के अदाकारी कर रहा था और लोग हंस पड़े। जो सेट पर जितने थे, मेरा भी हंसी निकल गई। सीन खराब हो गया, दोबारा करना पड़ा। तो गोया रंगीला कुछ भी नहीं करता था, ऐसे ही मुंह को फाड़ लेता था तो लोग हंस देते थे। ये उसकी कामयाबी थी। और एक वक्त ऐसा रंगीले पर आया था कि पाकिस्तान के तमाम हीरो और हीरोइंस एक तरफ और रंगीला अकेला एक तरफ, ये था। और ज़ेबा की बात मैंने इसलिए की थी कि वो गालिबन आज तक सबसे हसीन औरत जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आई वो ज़ेबा ही थी अभी तक। तो हसीन आदमी को वो यूं करके उदास हो गया तो सारी दुनिया ही उदास लगी। उसने मुस्कुरा दिया तो लगा सारी दुनिया में फूल खिल उठे। तो मैंने कहा इनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, कुदरत ने इनको मेहनत करके भेजा हुआ होता है। हुस्न, हाय हाय, वो अबरार का शेर है कि हुस्न और उसके फ्लॉप होने की क्या वजह थी। लोग जिस बात पर रंगीले को पसंद करते थे वो उसमें थी नहीं। रंगीला उसमें गूंगा बना हुआ था। पहली बात, वो जो यहाँ यहाँ करके वो जिस्म की मुख्तलिफ हरकत से और मुंह से अजीबो गरीब अल्फाज निकालता था, वो लोग उसको पसंद करते थे। वही उसने माइनस कर दिया। नतीजा वो फिल्म फ्लॉप हुई। उसके साथ कम व बेश 12 फिल्म साज दफन हो गए, जिनमें एक तारिक अजीज भी था। ये इन लफ्ज़ों में, इन मानों में मैंने रंगीले की मिसाल दी थी। और मैंने ज़ेबा के मुकाबले में मैंने कहा था कि शमीम आरा ज़्यादा मजबूत आर्टिस्ट, इसलिए कि वो आम शक्ल सूरत की औरत थी, उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ी। तो ये जो दरमियानी शक्ल सूरत के लोग होते हैं फिल्म में, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो बहुत हसीन होते हैं या थोड़े से यूं करके होते हैं, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये मेरा ईमान है, यही मैंने कहा था। आगे